Yes, hello guys, good evening. Welcome back to Margdarshan. So guys, today we are going to start our group discussion number 6. So guys, the basic thing before starting the group discussion, I will be telling you some basic thing, and after that we will be starting our group discussion. Okay. So guys, basically, what do you understand by group discussion? What do you understand by group discussion? Tell me, anybody? Tell me. Tell. Bolo. We are given a topic about something social issue or something like that, and we have to discuss or we have to get to a conclusion. Anonymous. Okay. Okay. So guys, basically group discussion takes place in 3 steps. Okay. The one is your introduction part, another is your discussion, or another is your discussion or the body part. Okay. And third one is your conclusion part. Okay. Mostly your introduction and conclusion, it is of 2 minutes. Okay. It is not necessary that a person who introduce or who concludes, he is only going to get selected. Okay. Or he is only going to get the marks. The person who speaks body with valid points and with minimum points, वो उसके ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के. ठीक है, चांसेस. अब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन को डिबेट बना देते हैं. ठीक है, जीडी को डिबेट बना देते हैं. बट गाइस, जीडी एंड डिबेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. डिबेट में कोई अगर प्रोस से लड़ रहा है तो वो कौन से भी लड़ सकता है. बट ग्रुप डिस्कशन में आप लोग को डिस्कस करना है, और एंड में कंक्लूजन में आपके आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आने चाहिए, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी आने चाहिए. दोनों पॉइंट्स आपके आने चाहिए. ओके, आर यू क्लियर अप टिल नाउ? ठीक है. सो बेसिकली that is only written. Students are given about 5 minutes to prepare trending GD topics before the discussion is started. During the discussion, okay. अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जब भी जैसे ही आप लोग को जीडी का टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद यू विल बी गिवन 5 minutes to think. 5 minutes to think and prepare the points for the topic which has been given. So in that 5 minutes, you take your pen and paper. There also you will be given the pen and paper. You have to note down the points what you want to speak in the entire group discussion. Okay. What does panelist observe in that group discussion? Basically, panelist observe speakers for the spoken English communication, how confident they are, ability to express their thoughts, ability to present an argument convincingly, and shows their leadership quality. So these all things are being judged by panelist. Okay. Coming to the next, guys. Now, what skills are being judged in the group discussion? And because of these skills only, from GD and GT only, you are being given the refinery or the position in the PSC. Okay, like whatever the location you are being given. Okay, the divisions are being specified with the group discussion and group task only. With the PI, your division is not going to be what? You are not going to get the divisions. Okay, with the PI. So you have to tackle GD and GT very properly to get the best location file or best division, right? Okay. Like in GD and GT, जिसका GD GT बेस्ट होता है, okay, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे होते हैं, उन लोग को मार्केटिंग में रखा जाता है. जो टॉपर्स होते हैं सबसे, आई मीन टू से नॉट AIR1, बट जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिनका वर्बल एबिलिटी अच्छा होता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस, कन्विंस, दे आर बीइंग पोस्ट इन द मार्केटिंग डिवीजन. ओके, आर यू क्लियर? ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what skills are being judged in the group discussion? So basically, first of all, how good is your communication skill? Second, how confident you are in interacting with the other group members. Third thing is how open-minded you are thinking. Okay, आपका एक्सपोजर कितना है, आप कितनी तरह से एक्सपोजर कर पा रहे हो, एक्सप्लोर कर पा रहे हो. आई मीन टू से हाउ फ्लेक्सिबल और रिजिड यू आर हैविंग इन एन ओपिनियटेड डिस्कशन. कोई ओपिनियन किसी पार्टनर ने, आपके कलीग ने दे दिया है, तो आप उसको कैसे सहमत, कितनी तरह से आप सहमत हो, कितनी तरह से उसको उसके पॉइंट पे सहमत हो, ये भी देखा जाता है. योर लीडरशिप स्किल्स, योर एनालिटिकल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, योर एबिलिटी टू मेक एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन. नाउ गाइस, most of the times people what they do, people argue in the group discussion. So guys, you do not have to argue in the group discussion, or you do not have to quarrel or fight in the discussion. Okay, you do not have to fight in the discussion. You have to present your points very convincingly and properly without any interruption. Okay.
now guys, some rules are there, like what rules should be followed in the group discussion. First of all, you have to ensure participation. Like, first of all, when you spoke, let others also spoke. Okay, don't come more than 3 times in a GD. Don't take turns 3 times in a GD. Second is you have to build the collaboration. Third thing is you have to boost productivity. Okay, like in इसका मतलब ये होता है कि कम शब्दों में ज्यादा अर्थ होना चाहिए आपका, है ना। कुत्तों की तरह भौंकना नहीं है, समझ गए। आप अपने पॉइंट्स बिल्कुल लिमिटेड पॉइंट्स रखो, बट ऐसे पॉइंट्स रखो कि वैलिड पॉइंट्स हो वो। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, discussion rules. So take turns, like that only I have said ki you take turns. Don't speak all the points in one at a one time only. You comes regularly, you come, and don't come more than 3 times also. Okay, be respectful, be polite, stay focused. Like most of the times we have seen ki like in the yesterday's group discussion only, like the topic which was given to the group, they diverted from the topic. Okay, so you do not have to deviate from the topic. You have to be stick on the topic only. Okay, great. Now, active listening, like paraphrasing, asking questions, body language. So body language, you have to maintain eye contact, because see, in this online group discussion, it is very much different, like what will be going on in the offline mode. In offline, you have to maintain your eye contact, which is very important, and your body language, like who is going to speak first. Okay, so that is very important. Second, asking questions. Okay, like suppose your colleague, one of the colleagues said one point. Okay, now you are not agreeing into that point, or did not understand that point. So you can ask the question, like you can ask for clarification, like on which perspective you are saying, because every point has some positive as well as negative impact. Are you clear or not? Like कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसमें पॉजिटिव बातें भी होती है, नेगेटिव बातें भी होती है, ठीक है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप वो पॉजिटिव बात कह रहा था आप नेगेटिव बात करोगे, आई मीन टू से आप उसको अपोज ही करोगे। और अगर ऐसा भी कोई पॉइंट है तो आप लोग स्टार्टिंग में बोल दीजिए कि यस देयर मे बी सम ड्रॉबैक्स आल्सो देयर, बिकॉज एवरी टाइम एनी ऑफ द लिमिटेशन अकर्स ओनली। लाइक आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, इन दैट आल्सो देयर आर लिमिटेशंस, राइट, है ना, या कुछ अजम्पशंस होते हैं। Now paraphrasing, guys, restate key points to show understanding. Like what इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे जब वो उनको टाइम मिलता है तो वो लोग अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, बट काफी टाइम ऐसा होता है कि ये जो पॉइंट्स है कोई दूसरा मेंबर स्पीक कर लेता है या बोल देता है, तो आप लोग को उसी पॉइंट को रिस्टेट करना है, आई मीन टू से रिफ्रेश करना है। समझ में आया? ओके, और गाइस ग्रुप डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस, जो भी व्यक्ति प्रोज में है वो प्रोज में ही रहिए, कॉन्स में मत जाइएगा, ठीक है। जा सकते हो आप लोग कॉन्स में, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो, बट मोस्टली गाइस प्रीफर करिएगा प्रोज में ही रहिए, मतलब प्रोज में या फिर कॉन्स में रहिए। अब गाइस अगर कोई आप लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू गिव द सोल्यूशन एज वेल। प्रॉब्लम अगर आप बता रहे हो, ट्राई टू गिव द सोल्यूशन एज वेल, बिकॉज प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन will give you positive marks and advantage, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओके, अब ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन को, उसके बाद फिर जैसे भी होगा मैं बताऊंगा। ओके गाइस, इन द ग्रुप डिस्कशन डू नॉट टेक द नेम ऑफ योर नेम ऑफ द कलीग। ओके, यू से कि व्हाट माय कलीग सेड इज राइट। ओके, डू नॉट टेक एनी ऑफ द नेम, बिकॉज अगर आप लोग किसी का नेम लेते हैं तो उन्हें वो एडवांटेज +1 पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। आर यू क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। कभी भी ग्रुप डिस्कशन में नाम नहीं लेना है, एंड इसमें फाइट नहीं करना है, आप लोग को सजेस्ट करना है, टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन का टाइम बता देता हूं मैं आप लोग को, सभी लोग को। गाइस, जो ग्रुप डिस्कशन का टाइम होता है, पहले 2 मिनट इंट्रोडक्शन होता है, ओके, 10 मिनट्स बॉडी पार्ट, 10 to 12 minutes body part, and 2 minutes conclusion. Okay, nobody will be concluding up till I say. Okay, okay, where are our paid students? Where are the paid students? Yes, Harshal, come on, Yes, fast.
Switch on the camera. Arun, you switch off the camera. You have given the GD. Priyanka, you want to give? Miss Priyanka Kumari, do you want to give the GD? Guys, see how much members I want. 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर हो गए. और बच्चे का अपने आकाश कुमार, अनुराग, वेयर आर यू गाइस? Yes, sir. हाँ. और कौन है? आशीष कुमार. आकाश कुमार, आपने कहीं कोर्स वोर्स तो नहीं ले रखा है ना? No, sir. किसी इंस्टीट्यूट में अगर ले रखा होगा तो आई वोंट बी अलाउइंग. ठीक है, बता रहा हूँ मैं. No, sir. No, sir. बिकॉज yesterday I seen. Sir, I have one doubt, sir. Like हिंदी में भी House will be house will करके be बोल. बाइलिंगुअल होता है. ओके, कोई उसमें कोई इशू नहीं है. ओके, बस भगवान से ये दुआ करना कि मेरे ग्रुप में जैसे अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो कोई साउथ का व्यक्ति ना है जिसको हिंदी समझ में ना आए. ठीक है, Okay. दैट इज लक फैक्टर. यस पूजा, मयंक पांडे, अगर आपको आना है तो आ सकते हो. ठीक है, मेरे को एक मेंबर और चाहिए, 1 या 2 मेंबर. ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? अनुराग, आई एम आस्किंग यू. अनुराग, अरुण नहीं. अनुराग, आशीष, मयंक, पूजा, प्रियंका. Okay, this is the last time I'm asking you. Okay, otherwise I will starting in 1 minute. If you want to come, switch on the camera. Done. Okay, guys. So what was the topic today? I also forgot the topic. Okay. So guys, the topic for today's group discussion is in IOCL interview. Total 8 students will be there. ठीक है, 8 लोग रहेंगे. 1 minute. Okay, great. So guys, the topic for today's group discussion is national green hydrogen. National green hydrogen. Are you clear about the topic? Yes, sir. Yes, sir. National green hydrogen. So guys, the topic has been given to you at 6:25, giving you 5 minutes to think. After 5 minutes, we will be starting the group discussion. Introduction, nobody will be switching off the camera and in entire discussion. And don't fight. और गाइस, एक चीज करिएगा, जब भी आप लोग को पॉइंट्स रखने हैं तो आप लोग अपना हाथ रेस करिएगा. ठीक है, रेज हैंड करिएगा. या फिर जूम में एक फीचर होता है रेज हैंड का, उसको आप लोग यूज कर सकते हो, है ना? रेज हैंड का फीचर है. ठीक है, ऐसे भी करोगे तो आपको दिखता होगा रेज हैंड का ऑप्शन आ जाता है.
Type the topic also. Okay, guys, you can start. Good evening, everyone. My name is Akash Rahan. Today we have gathered here to discuss on the topic National Hydrogen Mission, through which our nation India hopes to become Atmanirbhar, nation and provide a path to global clean energy transition. The mission presents both opportunities and challenges for our nation to become next superpower. Now the question of the hour arises that can we as a nation achieve net zero emissions in the upcoming decades and become a cleaner energy nation? I now open this group discussion for the room and request you to actively participate and provide your views. So as we all know that green hydrogen mission is a key part of Indian government, and by our honorable Prime Minister, we are aiming for net zero carbon footprint by year 2070. And in this period of Amritkal, which is till 2047, our government is actively participating to bring new different schemes to reduce the carbon footprint and to convert our usage of fuel to green hydrogen and clean fuels. And it's like a major objective is reduce the carbon emission, and which will reduce the dependency on the fossil fuels, which is like emitting greenhouse gases. So it will be better if we shift to green energy or green hydrogen. So
जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन की ओर जा रहा है, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन सिचुएशन अचीव कर पाएगा। तो इसके लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल और एक फ्यूचर है हमारा। बट As जो we as we know that India is in vehicles and in power generation fossil fuels India is using. So by making production of green hydrogen a greater aim, we can be less reliable on that fuel. And many Indian PSUs like IOCL, they are taking this step forward, and many other foreign countries which are working in India like Air Products and India, they are also working on this uh, project because using this green hydrogen, the air pollution can be less, sustainable development can be there, and environmental benefits are also there. ऑब्वियसली जो बट यहाँ आईओसीएल का जो है कि जो नेट जीरो इमिशन, कि उसका ही ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उसका ही पार्ट है। एज वी नो कि आफ्टर 4 to 5 डिकेड, ये एक एस्टिमेशन है कि 2050 तक जो जो क्रूड ऑयल है उसका रन आउट होने वाला है। एंड जो एडवांटेज अगर मैं कहूँ ग्रीन हाइड्रोजन का, कि जो उससे जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन का, वो डीजल और गैसोलीन से काफी कम है। एंड मैंने अभी कुछ समय पहले लिंक्डइन पे भी पढ़ा था कि जो वडोदरा रिफाइनरी है आईओसीएल की, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो इंडिया में इसी है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की। तो आई थिंक एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें और जो क्रूड ऑयल का जो यूजेज है उसे कम करें। प्रोड्यूस इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है आयुषल मथुरा में। बट जैसा कि सभी हमारे दोस्तों ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन अप्लाई करने से और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम जाएंगे तो जो कार्बन इमिशन है बहुत कम हो जाएगा। बट ये जो ग्रीन हाइड्रोजन सारी चीजें चाहिए, जैसे अगर हम उसे प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी होगा, और ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक मतलब इसको जनरेट करने के लिए प्रोडक्शन के लिए एक प्लांट, और वो उस तरीके का प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है। तो वो भी मतलब हमारे लिए अभी डिफिकल्ट है कि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए हमें कि जैसे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे। सो वाटर की डिमांड भी काफी होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि they are a little bit cons also for the production of green hydrogen, but as all we discussed, green hydrogen is our next future to achieve the net carbon emission. Yes, I agree definitely, with my because colleagues that production of green hydrogen required the process of electrolysis. So we have to find the new technologies like renewable energies like solar and wind energies which can run this electrolysis process. So that entire process is going to there is no carbon emission and no fossil fuel uses like there. But there is problem that it requires more initial capital, which is its disadvantage. But if we look इसमें at this topic, what my colleague is saying, that we need a lot of money, we can see it as an investment for the future. If we are spending money right now in this project, then in the future it will definitely help us as compared to the fossil fuels. And also, I would like to say, in India this year, we had a totally green hydrogen fueled bus for the public by Nitin Gadkari. So, so we are progressively moving forward in this sector, and I think, and I feel like that we will be achieving things very soon. इसमें I और agree ज्यादा with my रिसर्च colleague के that भी Mr. मैं इसमें और ज्यादा रिसर्च की भी जरूरत है ताकि हम इसको नेशनल वाइड पूरा इम्प्लीमेंट कर पाए। और इसका रिसर्च करेंगे तो उसको हमको टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए।
अब जैसे हम इसको सोलर, अब इस व्हीकल्स में भी हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे पेट्रोलियम को रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, डीजल पेट्रोलियम, इथेनॉल को यूज में ले सकते हैं, and that all these things. So I think the cost is the major problem. That's why it's not implementing at the larger scale. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हमें पहले पायलट प्लांट में या फिर R&D सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम R&D सेक्टर पे काम करके कॉस्ट इफेक्टिव वे पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के और भी वेज बना सकते हैं। बिकॉज अगर हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करना है तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ या ग्रीनर फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, और ग्रीन हाइड्रोजन एक रास्ता है। सो इनिशियली अगर हम R&D पे इन्वेस्ट करें और इजी या चीप वेज ढूंढे ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन के लिए, तो इट विल बी वेरी beneficial for us in my point of view. Definitely, because कहा कि एक ग्रीन हाइड्रोजन है जो वाटर के पायरोलिसिस से बन रहा है, जिसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो रिन्यूएबल सोर्स से ले रहे हैं, लाइक सोलर और वाइंड। एंड ऑब्वियसली जो कहा आपने कि जो कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है वो काफी ग्रीन हाइड्रोजन, और जनरली अभी जो मैं डेली बेसिस पे जो पढ़ रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, वहाँ पे अराउंड ग्लोबली रिसर्च चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन पे। एंड ये हमारे लिए इसेंशियल भी हो रहा है कि जब हम क्रूड ऑयल जनरली जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो हमें अराउंड जो मनी लग रही है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि हम एक बात कहें कि ग्रीन हम इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं, उसका एक मोटो ये भी है कि हमें जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसका जो कॉस्ट वो थोड़ा घटाना कम है। हो जाए। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी एक मोटो है कि हमें जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम घटाएं इस कॉस्ट, एंड ऑब्वियसली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं गैसेस एंड कार्बन उसको हम रिड्यूस करें। मैं मतलब आपके I अगेंस्ट नहीं हूँ। agree with my colleague मैं that we should reduce crude oil import, but we have to also notice that not only the process of making green hydrogen is costly, but also the storage and transport of green hydrogen is very costly. Now, to counteract this, I think the government should lead the way and must use the green hydrogen in its public transportation in the first in the as earliest as possible, and then the government should come in public-private partnerships with the PSUs companies as well as with other countries to provide infrastructure and As my colleague said, I totally agree with him about the transportation, as it's highly inflammable. So government should definitely look into this of like carrying it and storing it in a regular in a fire safety precautions should be taken very seriously, because and also for using it at a good bigger scale, substations and different stations of fuel should be made with proper fire safety precautions. I think we also need to emphasize on the point that we also need to find renewable energy potential sources across the country so that current engines and machinery, they are working on using the gasoline and diesel, so need to produce such a machinery that can work using green hydrogen. So इसका इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जीज पे पहले से ही मतलब काफी मतलब अब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, दिस ईयर काफी प्रोग्रेस हुआ है। लाइक फॉर द प्रीवियस ईयर हम सोलर एनर्जी से 44 गीगावाट समथिंग एनर्जी जनरेट करते थे, बट इन द ईयर 2024 अराउंड 84 गीगावाट समथिंग कैपेसिटी की हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो इंडिया मतलब इनिशियली धीरे धीरे I would like रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, काम कर रहा है मतलब। I would like to add some point. India is a developing country, so it requires lots of time and requires a large amount of cost to set up a green hydrogen power plant. So there must be some time delay in India to implement a hydrogen power plant, green hydrogen power plant. Yes, I agree with my colleague that India is a developing initial country. That means that we have to first increase our domestic demand as well, and
then focus on export of the green hydrogen fuel, because we as a developing country not have the infrastructure as well as the transportation system to consume the fuel that we are aiming to develop. Because we still, as a developing country, we use coal as the major electricity production fuel, whereas in developed country they have shifted to nuclear power for their major production of the energy. So first we have to first we have to create the customer base, because as our nation itself uh, cannot make that demand for the fuel. यस, जो कॉस्ट की रिक्वायरमेंट लग रही है, जैसे कलीग ने कहा कि कॉस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, और ये बात आईओसीएल को भी पता है, इसलिए लास्ट कपल ऑफ ईयर से आईओसीएल भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि नो कि हम खुद ही उस एनर्जी को डेवलप करेंगे और करने की जरूरत है, कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और इसका जब एक बार जब बन जाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमको थोड़ा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ बनने के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो वो बेटर नहीं हो पाएगा। It also requires much cost to marketing. Definitely, because creating and generating green hydrogen is one thing, and marketing is another big topic. Like, it's a very big thing and very important investment in anything to like flourish in the country, because you can't develop a trust just by bringing something new, because as Indians, we don't go directly into something new. We have to have that trust. So I think IOCL and Adani and HPCL and other companies are focusing on this too. So I think it's a good decision of bringing the green hydrogen in country. अवेयरनेस भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। लाइक अभी अब एग्जांपल देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो हमको जो उतना सेम एफिशिएंसी वो पेट्रोल व्हीकल के वजह नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसको चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सिमिलरली इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, हमको उसको एक बेस्ट अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, नॉट ओनली इन like energy production, cost effective, and also like ease to access for pupils, like हम अच्छे से उनको पहुंचाएंगे पानी की इसको। मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, कि हम प्रोडक्शन तो ग्रीन हाइड्रोजन का कर रहे हैं, पर हमें एक इंश्योरिटी जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें ऑब्वियसली अलग टेक्नोलॉजी लगेगी इंजन की, तो हमें जो मैन्युफैक्चरर है और जो इंडियन से जो लोग खरीदेंगे उन्हें ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये बेटर है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोडक्शन पे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्शन और R&D पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग के लिए एक इंडिविजुअल टीम है हमारे पास। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, देन हम लास्ट मतलब इन दोनों के बाद मार्केटिंग सेक्टर के बारे में सोचना है, क्योंकि एट द एंड हमें ये अपने कंज्यूमर्स और फिर इंडिया अपने मतलब कस्टमर्स को पहुंचाना है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू पहले प्रोडक्शन और R&D सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें एज कम्पेयर टू मार्केटिंग। But we can't wait for the product to just develop. We have to keep marketing it and promoting it as well, in my opinion. इनिशियली हमें अवेयरनेस लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, है ना, देन मार्केटिंग आफ्टर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन। So with the discussion, I think we have seen a lot of pros, and the only con is that it takes a lot of money, and it requires a lot of investment and transportation. Do you agree?
Yes, one of the I'm asking. these are some cons. Yes, Yes. its So, initial cost is high. okay. Why are you So according to, directly conclude? Yeah, it's so तो according अगर to our मैं discussion of yes, yes. conclude. please. वेदांत कंटिन्यू Okay. So according to our discussion of a group's discussion, we have concluded that the hydrogen is a very like good step, good initiative towards reducing the carbon footprint, and it has many pros. Like it helps in carbon emission, and it will help a country to achieve zero carbon footprint by year 2070. And it is easy to easy for the vehicles and other things. And the cons that we find are it is difficult for the transportation and handling, which the government and other authorities have to be very careful about. And yes, this is it. 3 pros, 1 cons. Only this much you discussed. Yes. Only these points you discussed in the entire group discussion. Where went the R&D part, the marketing, you were talking about the marketing part. Yes. Where it went? Acha, acha. So sir, it will be in the like pros. Okay, fine. Okay, leave it. So guys, starting, who gave? Samir, right? Yes, sir. I haven't I'm started. giving. No, sir, Akash. आकाश राइट सॉरी यू गेव आकाश तो जब आपने ग्रुप डिस्कशन की स्टार्टिंग करी तो आपने ग्रुप डिस्कशन आई Yes. मीन नेशंस हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बोला था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस मी दैट द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन Sir, I introduced green hydrogen mission definition, sir. इंट्रोड्यूस मी ग्रीन That हाइड्रोजन India is a जस्ट व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन green hydrogen is a next generation fuel, sir, which has very good efficiency. इज इट ओनली अ फ्यूल इज इट ओनली अ Sir, I फ्यूल don't यस have और much नो idea about this. No. So if you were like, if you see once introduction was okay, it was okay, okay, not very fine or not very bad. But if you are introducing the topic, so you should be aware of the topic, what was given. You introduce the National Green Hydrogen Mission. What the topic was, Nation Green Hydrogen. So you could have introduced about Sir, the it green was hydrogen first. What do you understand by the green hydrogen? The definition of green hydrogen. Okay. Then second, the importance of green hydrogen. What could be the importance? Why green hydrogen is very important in our day-to-day life or for the future perspective of the country? I will show you some PDF. Okay. Okay, sir. So guys, your introduction could have been like, first of all, introduction to green hydrogen. In this point, you could have defined the green hydrogen like green hydrogen is produced using renewable energy resources. Like what are the renewable energy resources like wind, solar, hydro, and water splitting of hydrogen into hydrogen and oxygen. So this is the definition. Now, second, why is it importance? It is considered as a clean fuel with no carbon emission, making it crucial for reducing greenhouse gases. इसके बारे में किसी ने बात चर्चा ही नहीं करी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में. क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट? और मैंने थोड़ा सा बोला था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन के एमिशन को कम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू गैसोलीन और डीजल पे. इतना ही बोला था सर. उसके बाद कोई पॉलिसी बताइए जो अभी चल रही है रिसेंटली करंटली ग्रीन हाइड्रोजन पे. कोई पॉलिसी बताइए जो चल रही है. कि अगर मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव लेके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सम टाइप का कुछ
तो बताइए ना, Exactly. कोई भी मिशन बताइए अगर आपको पता होगा तो। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आप लोग कह रहे थे ना, IOCL को भी पता है। यस हर्षल, IOCL को भी पता है ना। और मेरे जो दोस्त लोग कह रहे हैं, कौन थे ये, समीर, Yes, sir. ऐसा मत करना ठीक है। IOCL को भी पता है, मेरे दोस्त लोग, है ना। नहीं सर, मैंने कहा था IOCL मथुरा में पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप कर दिया है नहीं नहीं, और आपने अभी हर्षल, कमीशनिंग में। वो हर्षल थे। आपने यस कहा था सर। कि अभी जैसे मेरे दोस्त ने कहा है, ठीक है। अरे नहीं सर, दोस्त ने नहीं, मैंने ये कहा था कि आरएसएल को पता है तो। हाँ तो वही वही कह रहा जी हूँ, सर। आपने कहा था IOCL को पता है, समीर ने कहा था मेरे दोस्त। अभी जैसे मेरे दोस्त ने कहा है, आप कह सकते हैं मेरे मित्र, ओके सर। ठीक है। और यस। वन ऑफ माई कलीग सेड। ओके सर। ओके, सो गाइस, आपके जो भी नेशनल इनिशिएटिव्स है, जो भी पॉलिसीज है, इसके बारे में आप लोग ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस कर सकते थे। वेदांत के पॉइंट अच्छे थे, मुझे वेदांत का सही लगा, बहुत काफी अच्छा था। आज रवि वसंत में मैंने इंप्रूवमेंट देखा। रवि वसंत आपने आज काफी अच्छा बोला, ठीक है। वेरी सुशोभित, शोभित, और व्हाट वाज हिज नेम, राइट? Yes, sir. सुशोभित, सुशोजित, राइट? ओके, सो Yes. व्हाई वर यू नॉट स्पीकिंग द पॉइंट्स? व्हाई व्हाई स्टिल नॉट स्पीकिंग? Yes, sir. व्हाई? डोंट नो अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन? No, sir. No, sir. That much idea. I don't know that much on green hydrogen. How you are not? One or the other question you are going to be asked in the PI as well from green hydrogen. Okay, so you have to prepare green hydrogen. I have taken the video also that is uploaded in application on this green hydrogen. IOCL mostly focuses on the green hydrogen. You have to Yes, be sir. prepared and be ready for this. Yes, sir. Okay, total 6 types of hydrogen are there basically. Okay, blue hydrogen, brown hydrogen, okay, green hydrogen, pink hydrogen. Many a times, most of the times, not many, most of the times the question are being asked from the green hydrogen, because अभी जैसे आपने वेदांत कहा था नितिन गडकरी, राइट, है ना। तो Yes. आप वहां पे कह सकते थे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज सेड, मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, मिनिस्टर नितिन गडकरी ना आपके दोस्त है ना, ना ही आपके। Okay, sir. ओके, ही इज वन ऑफ द रिनोड मिनिस्टर्स। Yes, sir. तो जैसे आप वहां पे कह सकते हैं कि रिसेंटली द मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इंट्रोड्यूस द न्यू बसेस, ओके, विच रन्स ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन। वो बसेस के बारे में आपने जिक्र ही Yes, नहीं किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, आप लोग इसमें भी कंपेयर कर सकते थे, मतलब कुछ एक जगह पे आपने कंपेयर किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन हाइड्रोजन को आपने कंपेयर किया कि द व्हीकल्स आर मोस्टली रनिंग ऑन द ईवीज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। यू कुड हैव टेकन द पार्ट आल्सो कि हम लोग जैसे कि अभी हमारी बसेस चल रही है अभी ग्रीन हाइड्रोजन पे, हम लोग इसे 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पे ट्राई किया जा सकता है, इस पे R&D पे फोकस किया जा सकता है करके। क्यों नहीं कर सकते? Yes, sir. कर सकते हैं. Yes, sir. ओके, उसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो कोई भी IIT चले जाओ या कोई भी गवर्नमेंट चले जाओ, कहीं पे भी अगर कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन को बेसिस पे अगर स्टार्टअप करता है तो उन्हें इजीली फंडिंग मिल जाती है। एंड व्हाई इट्स लाइक दैट? व्हाई? अब आप लोगों ने ये चैलेंज रखा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का, आप लोगों ने चैलेंज रखा कि इसका जो स्टोरेज होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिवली, राइट? बट कैसे करोगे इसको कॉस्ट इफेक्टिव, और इसका स्टोरेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में आप लोग को पता है, एक व्यक्ति ने कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस से होता है ग्रीन हाइड्रोजन। Yes, sir. तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि हमें इनोवेशंस करना चाहिए, हमारी जो R&D टीम है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ताकि हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो काफी एफिशिएंट तरीके से हो। थोड़ा सा बोला था ये। हाँ बोला था आपने, मैं कही तो रहा हूँ, बोला था, वे थोड़ा अलग होगा बट हाँ हाँ, यही कहना चाहता था। राइट। यस सर। नाउ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसको भी कंपेयर कर सकते थे आप, ग्रीन हाइड्रोजन वर्सेस ग्रीन हाइड्रोजन वर्सेस, फॉर एग्जांपल, यस, ओके,
the cost of the cost of production the cost of production of green hydrogen as compared to the cost of production of ग्रीन हाइड्रोजन। नहीं, ये ग्रीन हाइड्रोजन है वर्सेस यस सर, क्योंकि इंडस्ट्री से जो Fuel. प्रोड्यूस होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन वर्सेस ग्रीन हाइड्रोजन। नहीं, Sorry. ठीक है, ग्रीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वर्सेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस से जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, या नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज से, राइट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, राइट। अभी तो आप लोग को ये भी पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. पता है कि नहीं? मेरा प्रोजेक्ट इसी पे है। ओके, तो उसके बाद लाइक करंट कॉस्ट वर्सेस प्रोजेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट एज टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स एंड स्किल्स। 2070 की बात तो कर दी, बट इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि हमारा कॉस्ट क्या लगेगा करके। पायलट प्रोजेक्ट बोल दिया, बट नहीं हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन जॉब क्रिएशन का काम करेगा, ये पॉइंट नोट डाउन करो। बोलो, कोई भी टॉपिक दिया गया है, जॉब क्रिएट करेगा। यस सर। Yes, sir. आप लोग को वैकेंसी पता है इस साल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में इतनी वैकेंसी क्यों आई है? बिकॉज यही नया प्लांट सेटअप हो रहा है IOCL का, Sure. इसीलिए इतनी वैकेंसी डाल दी है लोग। बरौनी फुल है, बट मथुरा वडोदरा खाली है, वडोदरा में ही, ठीक है, समझ रहे होगा आप लोग। नेक्स्ट, नाउ क्लाइमेट गोल्स, हाउ ग्रीन हाइड्रोजन कैन हेल्प मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट टारगेट्स। GDP पे क्या असर होगा? Increase होगी। बोलना था, फिर बोला नहीं किसी ने। इंक्रीज होगा सर। किसी पीटी पॉइंट बोले यार, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट बोले। मेरे को तो पॉइंट मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या बोल रहे हो आप लोग, कुछ भी ऐसा इनोवेटिव पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। सिंपल पॉइंट रख रहे थे आप लोग। ओके, जिसमें कह रहे थे, सिर्फ मैं बताता हूँ कौन कौन कह रहा था। वेदांत, समीर, Yes, sir. रवि ने 2-3 बार कहा बढ़िया से, और आकाश कह रहे थे। ओके, हर्षल 2 बार आए, और बस फिर 5। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे अब मुझे पॉइंट्स आ रहे हैं और मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, तो क्या फिर से बोलते रहना चाहिए अगर आ रहे हैं तो, या फिर रुक जाना चाहिए? आज नहीं, अगर आ रहे हैं तो आप बोलिए ना, अगर आपके कलीग्स बोलने को दे रहे हैं आप लोग आपको, ओके। अच्छा। बट अगर वो लोग भी बोलना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए, अपने बारी पे बोलिएगा। जब भी आपको बारी मिलेगी आप तब बोल दीजिए, ओके। ठीक है सर। सर ओके सर। बोलो। सर अगर हम लोग कौन सी बोलते जाएंगे तो पैनलिस्ट को ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या कहा, ग्रुप डिस्कशन में दोनों चीजें बोल सकते हो आप, प्रोस भी बोल सकते हो, कॉन्स भी बोल सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप आइदर प्रोस में रहिए आइदर कॉन्स में रहिए, मैंने ये बोला सर ही नहीं है कि आप आइदर प्रोस में रहिए या कॉन्स में रहिए। बट ये सही होता है कि अगर आप प्रोस में रहते हो, ओके, वो नेगेटिव ना तो सही नहीं लगता है कि आप हर नेगेटिव पे जा रहे हो करके। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी चैलेंज अगर आपको दिख रहा है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करिए, वहां पॉइंट मिलेगा। आपको कॉन्स में भी नहीं रहना है। ग्रुप ये जो होता है ना, प्रोस एंड कॉन्स, ये डिबेट में खेला जाता है, ठीक है, ये डिबेट में खेला जाता है। जैसे अभी था, आपने कहा था चैलेंजेस क्या होता, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सोल्यूशन बताइए, क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर सकती है करके, इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मार्केटिंग हमें बेचना ही नहीं है तुरंत ही। हाँ, R&D सेक्टर पे काम करेंगे सबसे पहले, और ये मतलब और आपको कैसे रिड्यूस कर एफिशिएंट सकते हैं, हाँ। और एफिशिएंट वेज फाइंड करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, तो जैसे कि अब ये हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है, पता है, तो इसके लिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे जो लिखा है ना, ये जो है यस सर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने इसके ऊपर में काम शुरू किया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, ओके। लगभग 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। जिससे
वैसे बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी, बट इससे कम हो रहा है कॉस्ट प्रोडक्शन। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन में जब भी आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, ओके, तो इसमें गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 1% ही यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें आपका इलेक्ट्रिक यूसेज होता है, इलेक्ट्रिक यूसेज होता है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक यूसेज को हम लोग को रिड्यूस करना चाहिए एंड इसके टेक्निक्स ढूंढना चाहिए करके। ओके, ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग एंड करेंगे। और भी पॉइंट्स है जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज, ग्रीन हाइड्रोजन रोल इन डिकार्बोनाइजिंग इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट एंड केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, यूज इन फ्यूल सेल फॉर व्हीकल्स। हाँ, फ्यूल सेल के ऊपर में किसी ने चर्चा नहीं करी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि केमिकल वाले तो भी फ्यूल सेल के ऊपर में चर्चा करे करके, बिकॉज, है ना। हाँ सर, अभी काम तो मतलब प्रोड्यूस हो गया है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनना ग्रीन हाइड्रोजन से ही ऑपरेट हो रहा है वो भी। बिल्कुल। एक डाउट है सर, जैसे कि इनिशियली जैसे सभी मित्रों ने स्टार्ट करा प्रोज में, और मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स थे प्रोज के, बट सबने बोल दिया था। और मैंने कुछ, हाँ, और मैंने कुछ पॉइंट्स कॉन्स के भी रखे होते, दैट्स व्हाई मैंने कॉन्स से स्टार्ट किया एंड देन सारे डेविएट होके कॉन्स पे आ गए थे। अच्छा, रिफ्रेश तैयार करो तुरंत ही, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, टिप्स है डिस्कशन के, लेटेस्ट न्यूज एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन, इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ। दूसरा, प्रेजेंट बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स एक्नॉलेजिंग बोथ द चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स। आपको आपके जो भी चैलेंजेस है, जो भी हो रहा है, वो चैलेंजेस को बताइए और उसके बाद में बेनिफिट को ही बताइए। सपोर्ट आर्गुमेंट विद डेटा सच एज द इम्पैक्ट ऑन कार्बन एमिशन और जॉब क्रिएशन पोटेंशियल। ओके, सो इसी के साथ हम लोग ऑब्वियसली शेयर्ड, समीर सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब शेयर कर दिए, देखो ग्रुप पे देख लो आप। सर एक और सर, चीज एक पूछनी है मुझे। बोलो। सर जैसे एंड में कंक्लूड किया मैंने, तो उसमें लाइक 3 प्रोज एंड कॉन्स बताएं, या फिर पूरा डिस्कशन का कंक्लूड करना है? हाँ, जो भी आपके ग्रुप डिस्कशन में हुआ ना उसी को कंक्लूड करना है ना, बाहर की चीज कंक्लूड करनी है, जो ना ही आपको जो आता है वो कंक्लूड करना है, जो इस ग्रुप डिस्कशन में हुआ उसी को कंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर जैसे मैंने मार्केटिंग वाला नहीं बोला, तो फिर वो सर प्रोज में आएगा कि कॉन्स में आएगा, मतलब? मार्केटिंग मेरे को बताइए, मार्केटिंग का जो था ये किस वे से आप कह सकते थे मार्केटिंग? कहीं पे भी मैंने ग्रुप डिस्कशन में, इंटायर डिस्कशन में मार्केटिंग के बारे में मैंने चर्चा करी? जिसने भी कहा था वो मार्केटिंग, उसको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। कहीं पे भी मैंने जो भी समझाया आपको, वहां पे कहीं पे मार्केटिंग लिखा था? नहीं कई शब्द दिखा था? नहीं लिखा था। नहीं। फिर मेनली मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना है। आप लोग उसे कहाँ लेके चले गए? बेचने के ऊपर लेके चले गए। बेचना नहीं था पहले, ठीक है। आई होप पहला ग्रुप डिस्कशन था तो फाइन, नॉट एन इश्यू, बट इट वाज फिर भी अच्छा ग्रुप डिस्कशन था। ओके, सिर्फ हर्षल में मुझे लगा कि हर्षल को सबसे कम मार्क्स मिलने चाहिए, सबसे कम मतलब सुशोजित को मिलना चाहिए, उसके बाद हर्षल को, उसके बाद आकाश को, आकाश कुमार, राइट, फिर उसके बाद किसे मिलना चाहिए सबसे कम? बाकी फिर एवरीबॉडी इज इक्वल, आकाश, आईफोन, समीर, रवि वसन एंड वेदांत श्रीवास्तव, यू ऑल सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स। ओके, सो ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास आपको मार्क्स मिलेंगे करके, ठीक है। एंड जो हर्षल येशी है, आकाश कुमार है, ओके, दे विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट 6 मार्क्स, ओके। एंड सुशोजित, यू विल बी गेटिंग 4 और 5 मार्क्स, ओके, 4.5। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना चाहिए, मतलब? सही सर बात, बोलो। सर अगर कोई बोल ही रहा है तो हम उसको ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसा रिफ्लेक्ट होता है सर वो चीज? मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? अगर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सर, तो हम उसको ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने कोई पॉइंट शेयर दिक्कत करो? नहीं, हाँ बोल सकते हो कि यस यू वुड लाइक, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनी पॉइंट यू कैन ऐड, ओके, बट टेंशन मत लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल मार्क्स मिलते हैं, और ग्रुप टास्क में आपका टीम मार्क्स होता है, ओके, ग्रुप टास्क में टीम मार्क्स होता है, वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो 9 बजे सेशन है केतन सर के साथ, डू अटेंड, ठीक है। ओके सर। और 7 बजे जिनका भी है, 7 बजे मॉक चालू कर दीजिए। हेलो, चलिए एंड करते हैं गाइस।